So hey guys, I hope you all are doing well. I'm doing super duper good and hope everyone's life is going on a good direction. Now, today we are gonna cover chapter number 5, Ecology and Environment of our Ancient Indian History series, in which we are gonna cover all the aspect of Asian India through our detailed lectured video. So it's in lecture number 5. So let's get started with it with my toolbox, and with the toolbox go. And if you are liking the video of this series, do like, share and subscribe. In the contemporary time, growing industrialization, which explosive population growth in several countries has highlighted the problem of protecting the natural environment. With the increase of population, the degradation of the environment started. And this because of industrialization. This is I. Okay, the interaction between natural environment and the human population is considered is the most important issue, and it describes as the problem of ecology and environment. What is ecology? Oh, sorry. Here's my toolbox. I was searching for it. The ecology is. Should I change the color? This one looking good. Okay, this one. Yellow is my favorite color, that's the reason. Ecology as a term was coined in 1869. It is relatively new science which deals with a branch of biology, which means it's considered to be an but it also considered to be independent subject. मतलब ये एक पार्ट कहा जाता है बायोलॉजी का और इसको एक डिफरेंट सब्जेक्ट भी कहा जाता है. However, it is closely connected with बायोलॉजी से कनेक्टेड रहता है. ठीक है. सब्जेक्ट डील विथ इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस लाइव ऑर्गेनिज्म सच एज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका डेफिनेशन है. ये देखो, इंट्रैक्शन बिटवीन दिस विद द इमर्जेंस ऑफ वुमेन द नीड what why I can't pronounce the word humans, the need for food, shelter and transport come to be found forefront. In ancient time, oh my god, human lived on wild produce and hunting bird and animals. Wait, okay, and hunting मतलब जो एशियन टाइम के जो पर्सन थे, मनुष्य, वो वाइल्ड प्रोड्यूस एंड हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, ह्यूमंस. हाउएवर इन द इंडस्ट्रियल एज, जो रिलेशन ऑफ वुमेन वाई उफ human with plant and animal has undergone a fundamental change. Now many living organisms are preserved through human efforts. Now देखो, तब तो पहले तो सब अच्छा डायरेक्शन में चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया. एंड जब अभी भी ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रिडमिक फॉल एंड अप्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग ज़रा सा कंसर्न हो गया अबाउट आवर एनवायरमेंट. बस स्टिल उतना कंसर्न से काम नहीं चलेगा, हमको रुकना पड़ेगा. ठीक है. अभी हमारा जो ये है ना देश है, देखो मैं बता रही हूँ, एक डेटा निकला था अभी, रिसेंट का ही डेटा है, इसलिए आप इसे ट्रस्ट कर सकते हो. एक टाइम वाई इट्स नॉट वर्किंग, वेट फॉर अ वाई बस कि हाँ, एक डेटा निकला है जिसमें बताया जा रहा है 2.2 जो है उतना हमको हमारा ये हो गया है क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग. एंड 2.5 होगा तो बस इतना हो गया तो बस काम तमाम. अच्छा, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? बोथ जो नेचर एंड मैनमेड थिंग जो हमारे सराउंडिंग में. इन्वायरमेंट से उतना ही समझ लो जो हमारे सराउंडिंग में. ठीक है. It also includes rural and urban social, economic, culture and political condition. Okay. Now the environment has direct bearing of human effort, but it could be wrong to think of environmental determination for human efforts substantially affect the natural surrounding. Does deforestation follow the production of cereals lead to large settlements? On the other hand, changes in climate and river course lead to be desertation of some settlements. Desertation भी हो रहा है settlements का, migration भी हो रहा है population का. Though there have been so many major climatic change since 9000 BC, on a world scale there have been some important regional variation. Thus, many scholars of Asian climate hold that extreme aridity and freezing temperature prevailed in Central Asia in the third and second millennium.
BC. Towards the turn of second million BC was built. अच्छा देखो यहाँ पे सिर्फ बताया जाए कि क्लाइमेट चेंज है, जो कोल्ड वेदर था वो धीरे धीरे हॉट में चेंज होना है। ये 2 मिलियन BC का है और यहाँ पे 3 मिलियन से स्टार्ट हो गया। बस इतना ही जानना है, ठीक है। वी कैनॉट थिंक ऑफ ह्यूमन एडवांस इन एशियन टाइम विदाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एडवांसमेंट्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन विदाउट उसके साथ साथ बहुत सारे व्हाट वी कॉल दैट बहुत सारे ये भी हुए हैं, मतलब एक्सप्लोटेशन भी हुए हैं नेचर रिसोर्सेज के ना। अर्लियर सेटलमेंट्स इन इंडिया वेर ग्रेजुअली नियर द लेक एंड रिवर, क्योंकि वहाँ से उनको पानी मिल जाता था, एंड पानी तो बहुत अच्छा है लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। विद टूल्स फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग, वहाँ पे ही पानी पीने एनिमल्स भी आते थे, हंटिंग गैदरिंग अच्छे से हो गया, एग्रीकल्चर अच्छे से हो गया, और क्या चाहिए भाई। सराउंडिंग एंड सेटलमेंट्स, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाउंड लार्ज एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, मतलब ज़्यादा एग्रीकल्चर सेटलमेंट नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंडेड थे। अभी भी इस टाइम तक, मतलब अभी भी इस टाइम पे तक नहीं, एशियन इंडिया में, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन विदाउट डिफॉरेस्टेशन एंड कल्टिवेशन के हार्डली एलिवेल सॉइल जो था उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग वहाँ पे ये कर पाए, व्हाट वी कॉल दैट, सेटलमेंट कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्या थे, इस वाले रीजन में रहते थे, यहाँ पे ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होने लगा तो हम लोग इस मूव पे कर लें। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे, इसको अगर काटेंगे नहीं तो यहाँ पे भी नहीं रह सकते, यहाँ पे भी नहीं रह सकते, मतलब उन लोग का रहने का जगह ही नहीं मिलता। इसी रीज़न की वजह से आयरन माइंस भी बहुत जगह फाइंड आउट हुए हैं। Iron mines has been also discovered and the technology of excavation and manufacture of iron artifact had to be developed in various parts of the country. The hard alluvial soil जो कि मिड गैंगेटिक प्लेन में पाया जाता है, और रेड सॉइल जो कि विंडेज जोन में, ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि डेक्कन वाले पार्ट में, एंड वेस्टर्न इंडिया नीडेड आयरन शेयर्स फॉर इफेक्टिव प्लगिंग. Today, safeguarding the natural environment is emphasized. Emphasize मतलब promoting, ठीक है. Okay. Today, safeguarding the natural environment is emphasized. However, despite deforestation, the Doa forests continue until 16th and 17th century. मतलब कल्टीवेशन के बाद भी, काटने वाटने के बाद भी, डिफॉरेस्टेशन के बाद भी, जो दोआ मतलब वो जो इस वाले रीजन के जो प्लांट बनाते हैं वो अभी तक थे, 16 एंड 17 सेंचुरी तक भी थे वहाँ पे प्रेजेंट. दिस इकोलॉजिकल चेंज वाज कंप्लीटेड ओनली इन द मॉडर्न टाइम, जब आए थे हमारे पास ब्रिटिशर्स. Once women beings started growing plant and rearing animal, they multiplied both of them. मतलब दोनों का वो प्रॉपर यूटिलाइज करने लग गए थे, ठीक है. द लोकेशन एंड द साइज ऑफ सेटलमेंट वे कंटिन्यू बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर. बहुत सारे जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, उस हिसाब से वो लोग सेटलमेंट करेंगे ना. अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर अच्छे नहीं है, मतलब वहाँ पे पानी नहीं है, रिवर नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, सेटलमेंट्स नहीं करेंगे. विथ सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे होना चाहिए, एंड फेवरल रेनी जोन भी होना चाहिए. जैसे कि रिवर लेक है तो अगर रेनी नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. ऑन द वो पेरिनियल अगर रिवर हो तो वो अलग बात है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड एरिड डेजर्ट एरिया विदाउट वाटर रिसोर्स, ये भी नहीं कर सकते हम लोग. गैंगेटिक प्लेन फॉर्म एंड अट्रैक्टिव इन्वायरमेंटल जोन, ये सारे फीचर को कवर करने वाला गैंगेटिक प्लेन जो था वो एक बहुत अच्छा ये पाया गया. व्हाट वी कॉल दैट, अच्छा एक वे पाया गया, वे फॉरवर्ड. यस, ओके. तो हम लोग कहाँ थे, दैट न्यूमरस सेटलमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग पोस्ट. ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. रिवर सर्व एज ट्रांसपोर्ट रूट, एंड मैंने तुम लोग को बताया गया कि वो लोग कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है. चेंजेस इन रिवर कोर्स इफेक्टेड, मतलब यहाँ से अगर जा रही है रिवर तो अगर यहाँ पे और बहने लग जाए तो ये भी बहुत सारे एरिया को डिस्टर्ब कर देती है, जैसे कि बताया गया. सरस्वती कॉन्ट्रोमेंस विद घाघरा एंड झागरा, घाघर एंड हाकर वॉज जॉइंट एट यमुना एंड सतलज. उसके बाद 3 टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रुप ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है, समझ आ गया. द रिवर जंक्शन सर्व एज अ early settlement. The junction effectively cleared forest and helped human habitation. पाटलिपुत्र the greatest city of India, this can be said कि वो भी रिवर जंक्शन के यहाँ पे इधर ही सेटल था. On which river? गंगा रिवर. ओके. गंधक
sorry. This place lay junction of Gangas and Son, not far from the town. The Gandhak and Bhakra भी उसको join कर लेती है. Punpun river भी join कर लेती है from the south. Presence of river on three sides made Patliputra virtually a water port and helped it become the first state capital. पता चल गया क्यों हुआ पाटलिपुत्र कैपिटल, क्योंकि वो वहाँ पे 3 रिवर जो थी वो कोलैप करती थी. देन यहाँ पे बहुत अच्छा एक पोर्टिंग सिटिंग भी बन गया था. ठीक है. द प्री हिस्ट्रिक टाइम चिरन बिकम इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जंक्शन ऑफ गंगा एंड घाघरा पे स्थित था, मतलब सिचुएटेड था. दिस इंडिकेटेड द एक्सकवेशन ऑफ न्यूलिथिक टूल इन चिरन. Many of them are made up of antler bones, which suggests that deer was hunted in nearby forest. Although rivers were preferred sites for settlements, people also settled near lakes and tanks. We find such sites in eastern UP. The practice of settling near water river continues to this day. मेरे सामने ही एक तालाब है लेकिन उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पानी जो फ्रेश वाटर भी पहुँचता है ना वो भी पानी ख़राब हो गया है बिकॉज ऑफ अस ओनली. उसमें कूड़ा फेंक दिया हमने. वी हैव टू कंट्रोल ऑल दिस टू अवॉइड द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचर. वी हैव टू कंट्रोल दिस. द रेन एंड ह्यूमन एफर्ट्स. नो फर्स्ट टाइम आई प्रोनाउंस इट गुड. ह्यूमन. यस ह्यूमन. आई वॉज प्रोनाउंसिंग एच विथ ए ह्यूमन. वुमेन तो फिर ये डबल वाला हो जा रहा था. अब इसको ह्यूमन पढ़ेंगे हम. यस साइलेंटिंग द एच. ओ आई गॉट द चेक टेक्निक एंड एग्जामाइन द. ओके चैप्टर नंबर 4 तो हमने पढ़ा ही है. अगर नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लो. मैं आज ये सुबह को अपलोड हो रहा है ना, मैं कल ये शाम को अपलोड कर चुकी हूँ. अगर नहीं देखा फटाफट देख लो. चैप्टर में मैंने A to Z हर एस्पेक्ट को क्लियर कर दिया अबाउट द नेचर नहीं क्या बोले, कौन सा चैप्टर का नेम मुझे याद नहीं है. हाँ जियोग्राफिकल सेटिंग, जियोग्राफी से रिलेटेड, हाउ जियोग्राफी इंटरेक्टेड विद द हिस्ट्री. दो हड़प्पन कल्चर जो थे एक एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट जो में फाउंड होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गुड रेनफॉल नहीं होता था. उस टाइम पे साइंटिस्ट के मुताबिक हड़प्पन एरिया में भी रेन होता था. ठीक है देख लो क्या एविडेंस है. रेनफॉल सर्टेनली हेल्प ह्यूमन सोसाइटी इन परस्यूइंग एग्रीकल्चर फाउंडिंग सेटलमेंट. बट हेवी रेन जो था वो ट्रॉपिकल मानसून भी डिटर्डेट करी फ्रॉम रेगुलर वर्क. जैसे कि हेवी मानसून फ्लड व्लड आ गया. फिर गौतम बुद्धा ना टीचिंग जो बुद्धिज़्म था वो एनुअली 4 मंथ के लिए रेनी सीजन में ये कर देते थे, छोड़ देते थे. और वहाँ पे वर्षा में वो एक 26 रेनी सीजन जो थे सरस्वती रिवर के लिए उसको उन्होंने स्पेंड किया. उस टाइम पे कोई भी मैरिजेस नहीं होती थी रेनी सीजन में. एंड बट टुडे अनलेस द इंस्टीट्यूशन आर क्लोज्ड ऑन देयर वर्कर ग्रांटेड लीव, पीपल हैव टू कंटिन्यू वर्क डिस्पाइट हेवी शावर्स. समझ आ गया. ओके सम अदर नेचुरल. ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. आप लोग सोच रहे हो कि मैम 13 मिनट होने को आप फिर भी छोटा चैप्टर बोल रहे हो. तो हाँ भाई कंपैरेटिवली ये छोटा चैप्टर है. वो सारे चैप्टर्स जो है ना इसके पहले वाले 40, 30, 20 मिनट्स के चैप्टर्स हैं. ये छोटा चैप्टर है. चैप्टर नंबर 6 है हमारे लैंग्वेजेस और उसके सारे ओरिजिन्स. वो सारे भी हम लोग पढ़ लेंगे नाउ नेक्स्ट वीडियो. उसके स्टे ट्यून्ड रहना. हाँ सम अदर नेचुरल हज़ार्ड जो था जो क्रिएट होता था बाई हेवी रेनफॉल, फ्लड हो गया, यूरिकेन्स हो गया, अर्थक्विक्स भी होते थे. वी फियर ऑफ अ फेमाइन जो कि लीड हुआ था इन प्री मौर्य टाइम फ्रॉम द मगध टू द साउथ इंडिया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया में चले गए थे. इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है. एशियन एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट ऋग्वेद डिपिक्ट करता है कि सरस्वती एज अ गॉड, दैट्स मीन हम लोग हर नेचर को पूजा किया करते थे. ओके मेनी ट्री एंड प्लांट इंक्लूडिंग नीम पीपल, शामी, वट, तुलसी, इनको तो अभी भी हम लोग सैक्रेड मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं. राइट. तुलसी मेनली सबके घर पे तो होंगी ही तुलसी माँ. दिस ऑल्सो इन द केस ऑफ हर्ब्स एंड इन मेकिंग ग्रास. ऑल दीज आर वैल्यूड बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. एंड अच्छा मैंने अभी भी बोल दिया अब हर किसी के घर में तो होंगी तुलसी ग्रास. अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये शायद गलत है क्योंकि
एवरीवन का डिस्टिंक्ट कल्चर है. हो सकता है आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इट कैन बी दैट दे आर नॉट दैट ऑफ सैक्रेड लिटरेचर. दैट मीन वो लोग, हो सकता है दैट the person will be of the other community, so don't be hurted with that. I realize my mistake and I am not gonna repeat it again. Okay, all these are valued because of their medicinal properties. क्यों? क्योंकि इसमें medicinal properties है. अब तुलसी जो पत्ता होता है ना, उसको हम लोग काढ़ा में डाल के यूज़ कर लेते हैं, एंड वो काढ़ा जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. इफ़ यू हैव ईटन दैट काढ़ा, माई मदर मेक दैट काढ़ा फॉर मी इफ़ आई एम ऑन माई टॉन्सिल, बिकॉज मुझे सर्दी ज़्यादा नहीं होती, उतने टॉन्सिल होते, थ्रोट होता है मुझे. मोर इस अच्छा यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंटली मेनी एशियन टेक्स्ट जो था स्लॉटर ऑफ एनिमल. ओके, स्लॉटर ऑफ एनिमल का भी स्लॉटर बताया गया है. क्यों? क्योंकि टू प्लीज द नेचर. ओके, गौतम बुद्धा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट टू नीड द प्रोटेक्ट्स काउ इन पाली colonial text called Shutta Nipatta. He states the virtue of rearing cow because of his view of cattle help to grow plant and provide people with food, virtually health and happiness. Hence, his injunction that people should not kill cows. In the early Christian era, Brahmanical texts lent religious color to Buddhist teaching, speaking of dire consequence in the next world for those who killed cow. Later, even the elephant came to be worshipped. Okay. A background of ecology and environment may help the study of ancient India, may be specially used in the study of our prehistoric time. क्योंकि prehistory में तो कोई written records था नहीं. राइट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसे आपको बता दिया. ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट एडवांस बाई हॉल्टिंग मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर. देखो, सबसे पहला इस चैप्टर को पढ़ने का क्या इंट्रैक्शन है, क्योंकि कैसे हमने डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को भी हार्म किया है. ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड, चैप्टर नंबर 5 ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ आवर एशियन इंडियन हिस्ट्री सीरीज़. यहाँ पे इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल, अगर कि आप न्यू हो तो सरस्वती चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो. मैं लिखूँगी आज लाइक, एज यू ऑल नो ये मेरा फेवरेट का है तो मुझे लिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड. यहाँ पे भी अराउंड 20 मिनट्स लगे गए जितना कि कलम को लगा था टू कंप्लीट दिस चैप्टर. दिस चैप्टर वॉज अबाउट टू जोग्राफिकल सेटिंग. मैं बार बार बोल रही हूँ, इफ़ यू हैवेंट वॉच इट, वॉच द वीडियोज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू द वीडियोज़. एंड कमेंट करो अगर कुछ वीडियो की क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है. देखो, अगर क्वालिटी, साउंड का क्वालिटी अगर कुछ ख़राब हो रहा है साउंड का बता दो, पिक्चर क्वालिटी अगर ख़राब हो रहा है पिक्चर का बता दो, कुछ भी ऑडियो अगर ये हो रहा है भैया, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट बिलो, तो मैं अगर उसको फिक्स कर पाऊँ तो मुझे फटाफट फिक्स कर दूँगी. ठीक है, तो हियर आवर लेक्चर एंडेड. तो होप, मैम जस्ट टेलिंग यू होप दैट बिकॉज everything will be happy in your life, you will be pleased. And if you are watching till now, let me tell you one thing, stay tuned. We are gonna cover ancient India in at first the beginning of the new year, and with the new year's happiness you will celebrate the happiness of ancient Indian history, completing it. So here's, this is Ananya Mishra taking a leave from you all. Ta-ta.